علاقائی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانی شہریوں کے قتل کا واقعہ۔ شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے مقتول محمد عامر کی نماز جنازہ کے بعد تدفین آبائی علاقہ ساندھی والے میں کر دی گئی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ مزید جانتے ہیں رفیق مغل کی اس رپورٹ میں۔ ایران کے شہر سستیان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے محمد عامر لیاقت کی نماز جنازہ ساندھی والا کے مقام پر ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شخصیت سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محمد عامر لیاقت 1 سال سے ایران میں مزدوری کی غرض سے رہائش پذیر تھا۔ چند ماہ بعد محمد عامر لیاقت کی شادی تھی۔ شہید عامر گاڑیوں کی ڈینٹنگ کا کام کرتا تھا، اور یہ ہمارے خون سے بیٹھ کے اداروں میں بیٹھ کے ہولی کھیل رہے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کرے۔ آج ہمارے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے مسلمانوں کو پردیس جانے کی وجہ تھی، ہم 1 سال سے ہمارا بچہ گیا ہے وہاں، کافی دیر سے محنت مشقت ہم لوگ کر رہے تھے، تو اس کے باوجود بس دشمنوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ بس وہ ہمارے پاس ابھی ان کی شادی کا ہمارا منصوبہ تھا، ساری سیٹنگ تھی، وہ اب ہمیں لاشیں وصول ہوئی ہیں، تو ہم بس اس ٹائم بڑے دکھ کے عالم میں ہیں۔ اہل خانہ نے NTN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مزدور لوگ ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، حکومت تعاون کرے، اپنے ملک میں روزگار فراہم کرے۔ شہید کو آبائی قبرستان ساندھی والا میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین اذان مغل کے ساتھ رفیق مغل، NTN نیوز، شجاع آباد۔ سلام والی سے انتہائی افسوسناک خبر، تیسری جماعت کی طالبہ کا بہیمانہ قتل۔ والدین کی غیر موجودگی میں بچی کو قتل کر کے لاش کو کمرے کے گارڈ کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے۔ جی کلیار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سیلم والی کے تھانہ شاہ نگڈر کے علاقے میں، جہاں پر تیسری کلاس کی طالبہ جو ہے، جس کی عمر تقریباً 11 سال بتائی جاتی ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ، جب وہ گھر میں اکیلی تھی، اس کے والدین جو ہے وہ گھر سے باہر تھے، تو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ بچی کے والد موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ میری کسی نال کوئی دشمنی نہیں ہے، میں مزدور بندہ، میں تو گھر کسی خرید پتہ کرنے واسطے 2 میاں بیوی نکلے، 2 چھوٹے بچے وہ سکول نے، تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم میں گھروں نکلے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ایسی خوش باش حالت ہے جتوں باغ کس گئے۔ وہ آدھی بھی یہ بھی ابو آ بنیا جلدی، میں بیٹھی ہوں، چھوٹے بچے بھی آ ویسے ڈنگروں پانی سارا کوئی کترا بیٹھا ہوتا گاپ اس سے بدل ایسا اتنے بیٹھے سارے تو اچانک اتنے فون گیا، چھوٹے بچے آئے 2 آدمی جو ڈٹ کے کھلی ہے، بس ایسے تو بعد چاہے لوگوں نے آمن تو جی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ہم گھر سے باہر تھے، تو ہمیں بعد میں کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تھانہ شاہ نگڈر کے سب انسپیکٹر محمد الطاف صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خودکشی ہے یا کسی نے قتل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی پولیس والوں کو بلایا ہے، وہ تصدیق کریں گے کہ کیا خودکشی ہے یا کسی نے مار ڈال دیا ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ سب انسپیکٹر الطاف صاحب نے بتایا کہ فرانزک ٹیم کو بلایا گیا ہے، تو اس کے بعد ہی جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ قتل ہوا ہے یا خودکشی کی گئی ہے۔ جی حجرہ شاہ مقیم کے جہانواہی علاقہ جیٹ پور میں باثر زمیندار کا غریب محنت کش پر وحشیانہ تشدد کا معاملہ۔ ملزمان تشدد بھی کرتے رہے اور ویڈیو بھی بناتے رہے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر DPO اکاڑہ کا نوٹس، 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ دیکھتے ہیں تنویر احمد شاہین کی رپورٹ۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی علاقہ جیٹ پور میں بااثر زمینداروں کا غریب محنت کش پر وحشیانہ تشدد۔ ملزمان تشدد بھی کرتے رہے اور ویڈیو بھی بناتے رہے، جو کہ بعد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی DPO اکاڑہ راشد ہدایت نے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ پولیس تھانہ حجرہ کو خصوصی ٹاسک دے کر ملزمان کو گرفتار کرنے کا کہا۔ پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم نے SHO حافظ اطہر رشید کی سربراہی میں کامیاب ریڈ کرتے ہوئے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تشدد میں ملوث ملزمان اصغر اور اختر کو گرفتار کر کے پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم نے ملزمان کے خلاف تھانہ حجرہ شاہ مقیم میں FIR درج کر لی۔ اس موقع پر DPO کا راشد ہدایت نے کہا کہ کسی کو بھی پرتشدد کارروائی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کی عزت نفس اور جان و مال کے تحفظ پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی، جس کے لیے پولیس بھرپور پیروی کرے گی۔ جی
दियारे गैर में रिस्क की तलाश मौत की वजह बन गई। चंद रोज कबल डंकी लगाकर लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में जाहिद महमूद भी शामिल है। जाहिद महमूद का ताल्लुक डस्का के मौजूदा धर्मकोट से है। गमजदा वालिदैन और मासूम बच्चे मैयत के मुंतज़िर हैं। देखते हैं शाहिद रियाज की रिपोर्ट। आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती हादसा में जहां बक होने वाले जाहिद महमूद का ताल्लुक डस्का के मौजा धर्मकोट से है। जाहिद महमूद 2 बच्चों का बाप 3 साल से लीबिया में मुकीम था और डंकी लगाकर यूनान जाते हुए जान की बाजी हार गया। तो जाहिद महमूद पिछले 2 से 3 साल से लीबिया में मुकीम था, वेल्डिंग का कारीगर था, वहाँ वो काम करता रहा है। लेकिन वो दोस्तों के साथ मोटिवेट होके उसने 2 से 3 दफ़ा पहले ट्राई की है, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन फिर जो मोटिवेट होके जुम्मे की नाइट को वो यहाँ से निकला है और हफ्ते की नाइट को हमें ये न्यूज़ मिली है कि वो कश्ती हादसा में डूब गया है। जाहिद महमूद के बूढ़े वालिदैन, बेवा, 4 साल बेटा, 2 साल बेटी गम से नडाल इसकी मैयत के मुंतज़िर हैं ताकि वो अपने हाथों से इसकी तदवीन कर सके। हाँ जी, असीं अपने हत्थां नाल ओहदे ते मिट्टी पाई अपने बच्चे नूं दफन करिए, अपने बच्चे दी ढेरी ते जावांगी, हौसला आवे मेरा बच्चा वापस आ। मैं बड़ी परेशान हूँ, छोटे छोटे बच्चे ने। लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की कि इनके प्यारे की मैयत पाकिस्तान लाने का फौरी बंदोबस्त किया जाए और इंसानी स्मगलरों को भी निशान इबरत बनाया जाए ताकि आए रोज़ होने वाले ऐसे सानियात की रोकथाम हो सके। शाहिद रियाज, NTN न्यूज़, डस्का। मसलूम ओलसी तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन सादिक खान अचकजई ने NTN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बिजनेसमैन तबाह हो चुका है। दुबई और दीगर ममालिक में बिजनेसमैन को हुकूमत सपोर्ट करती है। मजीद वो क्या कहते हैं, इस वक्त इनके साथ रिपोर्टर NTN अब्दाल रकीब अब्बासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है फाकी दारुल इस्लामाबाद में। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है सादिक खान अचकजई साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी का मकसद क्या है। इंसानियत पे बनाया, हम इंसानियत की खिदमत चाहता है कि हम कौम की खिदमत करवा दे। ये नहीं है कि ये सोच हम नफरत लाना है या हमने नफरत के लिए मजलूम अवामी तारीख पाकिस्तान नाम रखा है। कुछ लोग इसमें मजलूम की पेश वो करता है। मजलूम हर जगह में है। अगर कश्मीर में देकर मजलूम है, अगर KPK में चेकर मजलूम है, अगर गिलगित में चेकर मजलूम है। हमने मुस्लिमियत की नारा उठाया कि हम हर मजलूम के साथ हैं। ऐसे नहीं तो जब भी हमारा फलस्तीन के क्या हालात है आपने देखा हुआ है कि अगर हम लोग इसी के महीने में इसमें हमको कोशिश है कि हम इसके हक में एक मुजाहरा निकाल के वो करवा देंगे। मजलूम है, मजलूम के हक के लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाया। हम इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि हमारा पार्टी कामयाब भी हो जाएगी। उनकी माशियत जो है इस वक्त तबाह हो चुकी है, तो एज अ बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मजलूम पॉलिसी तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन सादिक खान अचकजई इन्होंने बात करते हुए कहा कि हम अवाम के लिए, ये जो पार्टी है अवाम के लिए, अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आए हैं। हमेशा अवाम की खिदमत हमारा फर्ज। ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की मिली भगत से सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। बासर अफराद की जानिब से कई एकड़ सरकारी अराजी पर गंदम काश्त की गई। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। देखते हैं मोहम्मद आमिर तालिब की रिपोर्ट। ओकाड़ा के मुख्तलिफ देहाती इलाकों में कब्जा माफिया का राज। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी काश्तकारी करने लगे। इलाका मकीनों की जानिब से मुतलका रेवेन्यू अफसरान और फील्ड पटवारी कनगो की खामोशी पर सवाल उठने लगे। मैं जी बाई फोरल ते रैशियां जेड़ी जो थे जमीन है 10 किले, वो जी सरकारी जमीन है 10 किले, उनका कब्जा करके आसिफ ने और तुफैल ने ते अकरम ने फरी बीजी हुई कणा गंदम 45 बेचना है, रकबा है हिंदू का ना सरकारी अफसरान ने मिल जुल के ना कब्जा कराया हुआ है और गंदम बीजी हुई है। ओकाड़ा चक नंबर 37/4L में तकरीबन 2 एकड़ का रकबा, जबकि चक नंबर 46/2L में 2 एकड़ का रकबा, चक नंबर 45/2L में 60 कनाल का रकबा और चक नंबर 22/4L में 10 एकड़ का रकबा मलकीती सूबाई हुकूमत पर गंदम काश्त की जाने लगी। तहसीलदार ने इस पर अपना मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और मुतलका अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया ताकि सरकारी जमीनों को नजायज काबजीन से वागजार करवाया जाए और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर तालिब, NTN न्यूज, ओकाड़ा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब साफ सुथरा पंजाब जनाब नगर में शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर और उबलती नालियां निजी कंपनी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। गंदगी के बायस खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार हैं। देखते हैं बिलावल वड़ाइच की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब साफ सुथरा पंजाब चिनाब नगर में शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। यहाँ की गली महलों में गंदगी के ढेर और उभरती नालियाँ निजी कंपनी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल होने के साथ साथ मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश में मददगार साबित हो रहा है, जिससे मलेरिया जैसी मोहलक बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस खाली प्लाटों में खड़ा पानी बीमारियां फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। निजी कंपनी की हेल्पलाइन भी चिनाब नगर में काम नहीं करती, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल और AC लालियां से मुतालबा किया है कि महलों की सफाई करवाई जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में मुनक़िदा किताब मेले में शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के लिए 110 मिलियन रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं खुर्रम मीर की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में मुनक़िदा किताब मेले में शिरकत की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 110 मिलियन रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तानी ये सवाल करना चाहता हूँ that I am still considered young because I am 38 कि मेरी वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, मेरे वो 50 लाख घर किधर हैं। मैं ये सवाल लेके आया हूं कि 2018 से 2022 तक सियालकोट यूनिवर्सिटी की बहनों और भाइयों की स्कॉलरशिप्स किधर हैं। क्यों आपको लैपटॉप्स नहीं दिए गए? मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए? अब जो आपसे पहले पढ़ के गई, क्या उनका सिर्फ ये कसूर है कि उस टाइम मिनिस्टर मैं नहीं था, ये चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ थी? हम आएंगे, हम चले जाएंगे, बट ये स्कॉलरशिप्स, ये लैपटॉप्स कंटिन्यू रहने चाहिए, क्योंकि ये मुस्तहिक लोगों की जरूरत है और ये हम आपको देंगे ही तो आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सूबे भर में तमाम तलीमी इदारों में इस तरह के किताब मेले का इनकाद पर हौसला अफजाई की जा रही है। कैमरा मैन मोहम्मद दीम के साथ खुर्रम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़, सियालकोट। मज़ीद आपको बताएं कि सराय मुगल में गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजारकला में दाखिला मुहिम के लिए रैली का एहतमाम। स्कूल इंतजामिया कमेटी, साथी और बच्चों ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद हसीब आबिद हंजरा। जी आबिद। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान की हिदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कलां में दाखिला मुहिम के लिए रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, असातिज़ा और बच्चों ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कलां से शुरू हुई और हंजरा कलां के मुख्तलिफ बाजारों, गलियों और सड़कों से होती हुई मेगा रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का मकसद बच्चों को गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कलां में बच्चों के दाखिले को मजीद बेहतर बनाना। रैली की क़यादत प्रिंसिपल मोहम्मद अल्फाक हंजरा ने की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कलां में बच्चों की बेहतर तालीम और वालिदैन को पैगाम दिया कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट हाई स्कूल हंजरा कलां में दाखिल करवाएं। मोहम्मद हसीब आबिद हंजरा, NTN न्यूज़, सराय मुगल, पत्तों की। और टैक्स बेस में इजाफे